Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm recording this video to cover up with the remaining topics which we are not able to do it due to my bad health. There are a few application part for the derivatives which I really want to end up now because I want to start with a new topic. So I'm doing all these topics which are left from the application part from derivatives on this video. Or I have just opened up with the screen which I've done the lecture in the class. So if you have a look, so you can see that first the topics are there which are from the application part. So you can see we are done with the first thing, which is the total cost, and these costs we have calculated in the class. And we also have done the second question. We haven't done the relationship between AC and MC. I'll do today. And we have done this fourth part, the market structure and equilibrium and comparative static analysis. And we also haven't done this fifth question, sixth question, and seventh one. So I would like to go with the fifth first, which is easier one, and sixth then. So let's have a start. So that's my working page. Just give me 1 minute. Okay, so let's have a look again with this question. So what we are looking for, we are given this question that given the quantity demanded 100 minus 2p, and we have to find elasticity. So let's write it down here. So we are given quantity demanded is equals to 100 minus 2p, and we are supposed to calculate elasticity. And what is the formula of price elasticity? It is percentage change in quantity demanded towards a percentage change in price. And if we elaborate it, it's delta QD over QD, original QD into 100 divided by delta P over P into 100. ठीक है, किसी भी चीज की परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम चेंज लेते हैं ओवर ओरिजिनल लेते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So I actually explained what is meant by percentage change in quantity demanded, what is change in percentage change in price. So if we just look at this formula, we can see 100 is being deleted. And if I arrange the question, then it can be written as this, or it can also be written as this. So given this elasticity formula, which is this part can also be replaced by dQd over dP into P by QD. As I mentioned earlier, that whenever we are working with formula of elasticity, if it is data, then this formula is used, and when there is an equation, then this formula is used. So right now we have equation, so we'll go with this formula. Now what do we need? We need this and we need this, right? So we have equation QD is equals to 100 minus 2p, and if I differentiate it, dq over dp, so I'll get minus 2. What is it? It is this part, ye wala part. Okay, so let's insert value. So if I insert the value over here, so it's minus 2 into P over QD. So that's actually the final elasticity value which we have got, because we do not have the data of P and QD. So either we are given, or if we are not, then we'll have to have the formula to be left at this point. Now if you look at this formula, so we have got this formula EP अभी जो हमने कैलकुलेट किया, E elasticity is equals to minus 2 into P over QD. Now if you have a look at QD, what is QD? It is this value, sorry. So if we just replace this value, so we have 2 minus 2 over P into 100 minus 2P, or what we can say minus 2P over 100 minus 2P.
That's the elasticity value we have calculated by inserting the value. And if you further explore this formula, so I just write it over here. Elasticity is equals to minus 2p, and we can take 2 out from here, so that will become 50 minus p. So just 2 is this gone. So what do we have? Minus p divided by 50 minus p, or if we just make it like this, p minus 50. Okay, so I just took p minus sign out from here, and I cancelled out with this above minus sign, so I'm left with 50 minus p will become p minus 50. So this is actually what is elasticity. So प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू पी ओवर पी माइनस 50. अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है. ठीक है, अब आपको पता है कि लीनियर डिमांड फंक्शन जो होता है, अगर मैं एक लीनियर डिमांड फंक्शन बनाऊँ यहाँ पे मैं लिखूँ क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पे रखूँ प्राइस, ये है लीनियर डिमांड फंक्शन. इसके बिल्कुल मिडिल में प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है एब्सोल्यूट साइन में. ठीक है, और ऊपर की वैल्यू में प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, और यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है. ठीक हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से इफ आई से के लेट प्राइस इलास्टिसिटी, मैंने दैट्स माय बाय द वे if I just want to keep my sign minus sign along with that, like 2 minus p over 50 minus p, let's say I have this and I make it absolute sign, so what will I have? p minus p over 50 minus p, हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं ना, so that will become p over 50 minus p, ये बन जाएगा. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना वो एक्चुअली p over 50 minus p हो जाएगी. अब आप इसमें सपोज लो कि लेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है ये वैल्यू आपने 1 ले ली. लेट्स पुट हियर 1 and then you'll get 50 minus p. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आई एम डूइंग इट ओवर हियर. 50 minus p is equals to p, and if I simplified it, 50 minus p equals to 0. So 50 minus 2p is equals to 0, and 2p is equals to 50, और p is equals to 25. ये कौन सी प्राइस आई है? ये जो 25 आई है प्राइस, ये क्या बता रही है? So this price says कि when price is equals to $25, then elasticity would be just equals to 1. तो we have got one result. ठीक है, अब मैं आपसे क्या डिमांड करूंगी कि at what price range does price elasticity is greater than 1? पहला क्वेश्चन. ठीक है, और सेकेंड आपने क्या कैलकुलेट किया? एट व्हाट प्राइस रेंज, ये लिखा हुआ है इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, डज लिखा हुआ डज. ओके, तो आपने ये मैंने एक 1 के लिए करके दिखाया है. आप ग्रेटर देन 1 में कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से 2 ले लो, 3 ले लो, इंसर्ट करो, यू विल गेट दैट आंसर. इसी तरह लेस देन 1 के लिए भी आप कोई नंबर अज्यूम कर सकते हो. सो दिस इज डन. वी आर मूविंग ऑन. सो लेट्स सी के व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर सपोज टू कवर. सो ये so we have done 5. let's do the 6th first and then I'll go back. और 7th आखिर में करवाऊंगी. तो u is a function of x1 x2, find MRS. that's very easy, so let's go for it. ये था 6th. u is a function of x1. ये what is u? Do you know what is u? u is utility function. And what is x1 x2? They are the commodities consumer is using. So what equation says that the consumer gets utility by the consumption of x1 and x2. So find MRS. But do you know what is MRS? MR is a slope of indifference curve. And if you have a look at difference curve कैसे नजर आता है? यहाँ पर x1, यहाँ x2. So ये है जी आपका u bar indifference curve. And what we are finding? We are trying to find MRS. What is MRS? The slope. So that shows a trade-off. Let's say this is the first unit.
and this is second unit. So this is change in x1 and this is corresponding change in x2. So MRS is equals to minus of change of x2 over change of x1. This is the slope gradient, right? Equals to minus of marginal utility from the product x1 over marginal utility from the product x2. ये formula है जो कि we have borrowed from microeconomics. So now they're asking for this. So there are two ways of doing it. One is if you're given u as a function of u x1 and x2, then you are finding MRS. तो इसका मतलब है you need first of all indifference curve. So how to get indifference curve? Just replace u with u bar and this will become indifference curve. And you are looking for the slope of indifference curve now. This is the indifference curve. ये है utility का function और ये है indifference curve की equation. और आपको इसकी स्लोप निकालनी है. अब दो तरीके हैं. नंबर 1, टू मेथड्स. पहला मेथड होता है टोटल डेरिवेटिव वाला, ठीक है, टोटल डिफरेंशियल वाला, टोटल डिफरेंशियल. और दूसरा होता है डील विद लाइक कैसे करना है. MRS इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ MU1 ओवर MU2 is equals to minus of MU1 क्या होता है, partial of the utility function with respect to x1 and partial utility with respect to x2. यानी अगर कंज्यूमर, इसका मतलब है if consumer uses 1 more unit of x1 how much change in utility will be there. और नीचे वाले का क्या मतलब है, सेम इसी तरह से x2 के साथ. तो अब आप देखोगे आपके पास अगर यूटिलिटी फंक्शन, ये फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं और उसको इंसर्ट कर देना है, कहानी खत्म हो जाएगी. सो बेसिकली आपका फंक्शन यूटिलिटी का जो है u इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2. तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x1 इज इक्वल्स टू mu1 एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल x2 इज इक्वल्स टू mu2. क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ ना, तो हम इसे जेनेरिक ही लिखेंगे और उसको इंसर्ट कर दो. तो ये एक मेथड है, ठीक है, और माइनस साइन नहीं भूलना. दूसरा है डिफरेंशियल का मेथड. तो डिफरेंशियल मेथड में बताती हूँ. मेथड 2, टोटल डिफरेंशियल मेथड. ये आपने अगर सीख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी. और वो क्या है, u बार इज इक्वल्स टू u ऑफ x1 x2. तो ये क्या मेथड कहता है कि भाई वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की बजाय डायरेक्टली इसी डेरिवेटिव डिफरेंशियल ले लो और वो कैलकुलेट कर लो. तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं. यह जगह du बार और ये डिफरेंशियल जब इसका आएगा तो हम लिखेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x1 इंटू dx1 पार्शियल u ओवर पार्शियल x2 इंटू dx2. ठीक है. अब आप देखो कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगी 0. और ये जो चीज़ है ना, ये होती है mu1 और dx1 प्लस ये उसके बाद वो है mu2 इंटू dx2. Now I can write minus mu1 dx1 is equals to now you can arrange it. This is called MRS. ठीक है. तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल इसकी करा देती हूँ. सपोज करो कि आपके पास है u इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, ठीक है. आपने इसको बनाना है u बार du बार 2. अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और dx1 5 इंटू dx2. अब आपको पता है कि du बार जो होता है वो 0 होता है. तो ये आ जाएगा dx1 5 dx2 और dx2 और dx1 क्या आ जाएगा माइनस. और आपने क्या किया हुआ है कि आपने dx1 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया हुआ है और इसके बाद आपने
-2/5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें इस तरह का सवाल है, u is a function of x1 power alpha और x2 power beta and find MRS, तो क्या आ जाएगा? आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। -mu1 over mu2 and what is mu1? आपको पता है कि mu1 is the partial derivative of u with respect to x1। तो अगर हम इसे करते हैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपको पता है x2 बीटा इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव आ जाएगा अल्फा x1 अल्फा -1 इंटू x2 बीटा। ये क्या आया? ये mu1 आया, ठीक है। इसी तरह से mu2 निकालो तो आ जाएगा बीटा x1 अल्फा x2 बीटा -1। इंसर्ट करें यहाँ पे माइनस अल्फा x1 अल्फा -1 x2 बीटा डिवाइडेड बाई बीटा x1 अल्फा x2 बीटा -1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम। सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा माइनस अल्फा बाई बीटा कैन बी टेकन अवे, ठीक है। x1 के नीचे x1 लिखें, x1 माइनस x1 अल्फा, और x2 के नीचे x2 लिख दें, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो है ना पावर्स कंबाइन कर लें, अगर x1 अल्फा -1 टू x1 माइनस अल्फा ऊपर ले जाए, x2 बीटा इंटू x2 माइनस बीटा +1, ठीक है। वो पावर जब माइनस होगी ऊपर जाके तो हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको कंबाइन करें जरा, तो क्या नजर आ रहा है? अल्फा अल्फा से चला गया, बीटा बीटा से चला गया, माइनस अल्फा बाई बीटा x1 की पावर -1 x2 की पावर +1। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, अगर माइनस अल्फा बाई बीटा x2 को ऊपर ही रहने दिया और x1 को नीचे ले आए, तो ये क्या चीज बन गई थी? MRS, ठीक है। इसको जरा प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन को, सॉरी। तो ये this is a way of finding MRS through partial derivatives. It cannot be taken by total differential too. Now again have a look at these questions. We have done, look at this, we have done 1, we have done 2, we haven't done 3, we have done 4, we have done 5, we have done 6 too. Now if you have a look at this, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6 are done. Only 3 and 7 is left. So, and 8 also. So I will not go with the 7th, but I will go with 8, 3rd and 8th. So this question is about relationship between AC and MC. So I'll go with that first. Application आ रही है। ये है क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये सो इफ यू हैव अ डायग्राम ऑफ AC and MC, यहाँ पर होती है प्रोडक्शन और यहाँ पे होते हैं कॉस्ट कर्व्स, ठीक है। कॉस्ट का मतलब है AC BC में और MC BC में, और बहुत सारे आ सकते हैं। तो अगर किसी को अपनी पुरानी बातें याद हो तो ये होता है एवरेज कॉस्ट कर्व और ये होता है MC। बोथ आर यू शेप, दोनों की यू शेप होती है, ठीक है। मगर MC कट्स एट, कैसे कट करता है? AC एट द मिनिमम ऑफ MC कर्व, सॉरी AC कर्व, ओके। यानी आप देखो कि MC जो है वो कहाँ पे कट कर रहा है AC को, जब AC मिनिमम है। तो ये रिलेशनशिप जो है हम इसको मैथमेटिकली वर्कआउट करेंगे। सो इन ऑर्डर टू डू मैथमेटिकली हमें इक्वेशंस चाहिए। तो पहले देखिए AC,
AC क्या होता है? टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और टोटल कॉस्ट किस चीज का फंक्शन होता है? अगर आपको मैं टोटल कॉस्ट ग्राफ दिखाऊं तो यहाँ पे Q है और यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, तो वो ऐसे करके होता है टोटल कॉस्ट का फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट किससे चेंज हो रही है? देख लो कि अगर आपके पास 1 यूनिट है तो ये टोटल कॉस्ट है, 2 यूनिट है तो ये है, 3 यूनिट है तो ये है। सो बेसिकली टोटल कॉस्ट ये किसका फंक्शन है? इज अ फंक्शन ऑफ Q। ओके, तो मैं लिख सकती हूँ इस AC फंक्शन में, क्या लिख सकती हूँ कि टोटल कॉस्ट तो लिखा लेकिन उसका फंक्शन भी मेंशन कर दूंगी। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये इन्फॉर्मेशन है कि टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ Q, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। ये है हमारे सामने ग्राफ AC और MC का, और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब AC मिनिमम पर होता है ना, उस पर MC और AC बराबर होते हैं। तो अब हमें इस चीज को फोकस करना है, व्हेन AC इज मिनिमम देन AC इज इक्वल्स टू MC। ये हमें एक चीज निकालनी है मैथ से। तो अब देखो कि जब भी कोई फंक्शन अपने मिनिमम पर होता है ना, व्हेन एनी फंक्शन इज ईदर एट इट्स मिनिमम और मैक्सिमम, द slope of that function at min और मैक्स इज 0, ठीक है। तो अगर AC फंक्शन की मिनिमम की बात हो रही है तो हम ये कह रहे हैं कि इस पे AC की स्लोप 0 है। तो स्लोप ऑफ AC का क्या मतलब हुआ? स्लोप हमेशा मतलब होता है डेरिवेटिव किसका? AC का। और मिनिमम का क्या मतलब होती है? स्लोप शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि व्हाट इफ आई एम टेकिंग द स्लोप, this is the slope I'm trying to calculate, and answer is 0. So I basically will say that this is a point at which AC is minimum. बस ये कहानी है सारी। तो अब आप देखो डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू AC हम ये निकालना चाह रहे हैं, और हम इसको क्या करेंगे, आगे जाके 0 के इक्वल करेंगे। तो बेसिकली वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे AC और MC बराबर होते हैं। इक्वेशन खुद ही बता देगी सारी कहानी। अब आप देखो AC की वैल्यू क्या होती है? AC की वैल्यू होती है TC ओवर Q, जबकि जो TC है वो भी फंक्शन ऑफ Q है। तो बेसिकली ये सॉल्व होगा क्वोशिएंट रूल्स के साथ, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल मैं लगाती हूँ, न्यूमरेटर भी एक वेरिएबल है और डिनोमिनेटर भी एक वेरिएबल है। सो आई एम ट्राइंग टू डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ AC। इन ऑर्डर टू डू इट आई विल हैव टू डू dq by dt of total cost with respect to Q divided by Q, ठीक है। अब आप देखो वही वाला रूल अप्लाई करो, Q का स्क्वायर, फिर Q को ऐसे लिख लिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ TC माइनस TC ऐसे ही इंटू माइनस नहीं इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बस ये होती है कहानी। सो इफ आई डू इट, सिंप्लीफाई इट, व्हाट आई गेट, इट्स Q स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। TC into dq over dq is equals to 1, and that's equals to Q square. Yeah. So what can I do with this is that I can, is it Q or Q square? I think that was Q. यहाँ mistake है, it's just Q. Okay. इसको erase कर ले यहाँ से, ये Q square नहीं है। So basically if it is Q, then this should also be Q. So let's split the expression. I can write Q into MC over Q square minus TC over Q square. Correct? So this Q square and Q will go. So this is MC over Q only. Minus, I can write it like this, 1 by Q into TC by Q. ठीक है? 1 by Q into TC by Q अलग कर दिया, Q square को अलग कर दिया। अच्छा, अब ये देखो MC ओवर Q माइनस 1 बाई Q, तो ये क्या चीज बन गई? टोटल कॉस्ट इंटू बाई Q इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। सो बेसिकली व्हाट इक्वेशन आई हैव, डू आई हैव इज इक्वल टू दिस वन,
ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है। और इस इक्वेशन का क्या मतलब होगा कि मैं इसमें से 1/q को बाहर निकाल दूं तो mc माइनस ac रह जाएगा। रिमेंबर दैट दिस वाज व्हाट वाज दैट वाज द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, and the slope of average cost curve at its lowest is 0. So if I just put derivative of AC with respect to Q is at 0, that simply means that I am referring to this point. ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर डेरिवेटिव जो है वो 0 हो रहा है। तो अब यहाँ से मुझे क्या मिलने वाली है, ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी एक्सेस है और वो कॉस्ट एक्सेस है। अब आप देखो कि यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव जो आया हुआ है वो, अगर आप डेरिवेटिव ऑफ AC को 0 करती हो तो इसका क्या मतलब है, इसकी वैल्यू को इंसर्ट करो। सो दिस इज MC माइनस AC, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज 0। अब Q जो है उधर जाके 0 हो जाएगा तो MC माइनस AC इज इक्वल टू 0 एंड MC इज इक्वल टू AC। तो स्टार्ट हमने क्या किया था, हमने अस्यूम किया था कि डेरिवेटिव अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, जवाब आया MC और AC बराबर होंगे। तो यही तो हम ढूंढते हैं रिलेशनशिप, जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ था उसके अंदर यही चीज थी। ये देखो ये वाला ग्राफ, यू कैन सी दैट राइट। तो ये हमने निकाल लिया। इसी तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हो कि व्हेन डेरिवेटिव ऑफ AC with respect to dq is positive, this will imply that क्वेश्चन मार्क, आप खुद बताओ क्या है। और ऑपोजिट को भी करना है, अगर डेरिवेटिव ऑफ AC over dq is negative, then AC and MC में क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे होता वर्कआउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, लेट्स हैव अ लुक। MRS का हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, रिलेशनशिप भी आ गया। ओहो, ये मुझे क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, देखते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू c माइनस i माइनस i नॉट माइनस g नॉट, i नॉट g नॉट का चक्कर वैसे ही खत्म हो गया ना। बाकी c माइनस तो c इसमें पुट कर दे, t जो है वो इसमें पुट कर दे, और फाइंड पार्शियल y और पार्शियल g नॉट। तो बहुत सीधा है। इस पहली वाली इक्वेशन में c की वैल्यू डालें और t की वैल्यू कहाँ डलेगी, c के अंदर पड़ी हुई यहाँ डलेगी, और बस ये सारी के सारा मिला जुला के एक इक्वेशन बनेगी जो कि y की इक्वेशन होगी। उसमें सिर्फ y पड़ा होगा और y की वैल्यू जब आ जाती है तो उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू g नॉट, विद रिस्पेक्ट टू m नॉट, और एक्सप्लेन करें फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी अगर कहा हुआ है आपने। ठीक है, तो ये सारे हो गए क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं रहने दूंगी और मैं कल की क्लास के अंदर आपको जो है ना ऑप्टिमाइजेशन 1 वेरिएबल के साथ करवाऊंगी, चैप्टर नंबर 9। सो प्रैक्टिकली वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 6, 7, 8, 10 ये हो गए। अब 9, 11 और 12 रह गए, और हमारे पास मेरे ख्याल में कितना टाइम है, 1 वीक है या 2 वीक्स है, लेट्स सी। ये वाला वीक और ये वाला वीक भी है, शुक्र है। तो बेसिकली ये 3 और 3 6 क्लासेस होंगी, तो 6 क्लासेस के अंदर हम जो है ये क्या कर रहे होंगे, ये हमारा है चैप्टर 8, हमने 8 कर लिया। ओके, हो गया, आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज खुद कर लेना, ये मैं आपसे बार बार नहीं कहूंगी, लेकिन आपको करनी है। ठीक है, इस तरह की मॉडलिंग होगी जो आप लोगों को ना समझ आनी चाहिए। ये इस तरह के पेपर्स के अंदर मॉडलिंग होती है जो अच्छी हाई लेवल बुक्स है, उसका मिनिमम लेवल ये है। ठीक है, ये IS इक्वेशन है पूरी, ये LM इक्वेशन है, और ये फॉरेन मार्केट है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट के मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए ना, कि आगे चलो सर, जो कि फिलहाल मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। ये देखो, ये है हमारी ऑप्टिमाइजेशन का चैप्टर, इसके अंदर हमें ये टेक्निक सीखनी है। सेकेंड डेरिवेटिव ये सब एक ही में आ जाएगा,
and we practically have to do not this exercise, एप्लीकेशन वाला पार्ट ये इम्पोर्टेंट है जी। ये इसकी एप्लीकेशन है और फर्स्ट है ये इसकी क्वेश्चन है और ये चीज एप्लीकेशन ही है। और उसके बाद 9.4 एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने करनी है, टेलर मैकलॉरिन आपने नहीं करना, ठीक है। आगे चलो, बाकी सारी कहानी इसमें से नहीं करनी हमने। और उसके बाद हमें करना है चैप्टर 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी 10.5 होते हैं इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद कौन सा, ये सब लॉग एक्सपोनेंशियल रूल्स ये सब हो जाएगा। अच्छा, ये आगे लेवल डिफरेंशियल वर्जन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये है जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये टेक्निक हमने पढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है और बस इसकी एप्लीकेशन में 2 मार्क्स होगा। उसके बाद एक लास्ट बैच आएगा इंशाल्लाह। होपफुली we will do our best to complete the course within these 2 weeks. Thank you so much. और अगर कुछ समझ ना आया हो तो you can come to my office. Thank you.